পিছত এই বিষয়ে মোৰ কথা পতা হোৱা নাই কাৰণ বানপানীৰ পৰিৱেশটো আহি গ'ল কাৰণে পিছৰ বাৰ আহিলে এই বিষয়টো আলোচনা কৰিলো মোৰ ফ্লাডৰ বাজেট এতিয়ালৈকে হোৱা নাই 6 আগষ্ট তাৰিখে আমি মিটিং দিছো যত মথাউৰিৰ খৰচখিনি ওয়াটাৰ ৰিসোর্স ডিপাৰ্টমেন্টে আমাক প্ৰেজেন্টেশন দিব এসেসমেন্ট 6 তাৰিখে ফাৰ্স্ট এসেসমেন্টটো পাম যিখিনি এসেসমেন্ট হৈ আছে সেইখিনি আমি ৰিলিজ কৰি আছো কিন্তু মথাউৰিৰ এসেসমেন্টটো কিমান হ'ব বনাওতে হেতু 6 আগষ্টত ওয়াটাৰ ৰিসোর্স ডিপাৰ্টমেন্টে আমাক প্ৰেজেন্টেশন দিব আজি আপুনি ডিসি সকলৰ সৈতে সন্মিলনত মিলিত হৈছিল গতিকে তাত আমাৰ অহা 20 আগষ্টৰ পৰা অসমত এমহিয়া অৰুণোদয় মাহ উদযাপন কৰা হ'ব অৰুণোদয় মাহৰ উদযাপনৰ লক্ষ্য হ'ল যে যিসকল হিতাধিকাৰী এই আঁচনিত আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত আমি আকৌ এবাৰ যাম মানুহজন জীয়াই আছে নে নাই বা আগত যি কাৰণে পাইছিলে সেই পৰিৱেশটো ঘৰত একে আছে নে পৰিৱেশটো উন্নত হৈছে যদি উন্নত হৈছে চৰকাৰী চাকৰি পাই গ'ল বা গাড়ী কিনি ললে তেতিয়া তেওঁলোকৰ জায়গাত আন দুখীয়া মানুহে অৰুণোদয় পাব সেই কাৰণে স্কুলৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী সকলৰ ঘৰত যাব তাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম হ'ব 5 আগষ্টলৈকে তাৰ পিছত তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে হিতাধিকাৰী সকলৰ ঘৰত এটা সাৰ্ভেৰ কাৰণে যাব যেটো 20 আগষ্টৰ পৰা 20 ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলিব তাৰ পিছত 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 20 অক্টোবৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 8 লাখ নতুন হিতাধিকাৰীকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এই বিষয়টোৰ ওপৰত ডিসি সকলৰ লগত আজি মোৰ আলোচনা হৈছিল 20 আগষ্টৰ পৰা 20 ছেপ্টেম্বৰলৈকে নাম বাদ দিয়া কাম আৰম্ভ হ'ব 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 20 অক্টোবৰলৈকে নাম সোমোৱা কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু এই বছৰতে লিষ্টখন আমি নতুনকৈ সজাই পৰাই তুলিব কৈছো আৰু আধাৰ নম্বৰক দি পেলাই যাতে আধাৰ এনাবল হ'ব পাৰে আগত আমাৰ হিতাধিকাৰী লিষ্টখনত আধাৰ এনাবল নাছিলে আমাৰ অসমত এতিয়া আধাৰ কভাৰেজ 96% ওপৰত গুচি গ'ল খালি এনআৰসিৰ কাৰণে কিছু মানুহৰ আধাৰ ব্লক আছে কিন্তু তেওঁলোকে আধাৰৰ অলৰেডি ফিংগাৰপ্ৰিন্ট দি থৈ দিছে যদি কোনোবা হিতাধিকাৰীয়ে এতিয়া সরকারি চাকৰি পাইছে বা অন্য পৰিয়ালৰ অৱস্থা আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত হৈছে তেওঁলোকৰ নাম বাদ পৰিব কিন্তু তেওঁলোকে নিজেও নামটো বাদ পৰিবৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এটো নহয় যে চৰকাৰে বাদ দিব এটা কম্পিউটাৰত মানে ইন্টাৰনেটত আমাৰ যেটো ইয়াৰ পোৰ্টেল থাকিব তাতে কোনোবা মানুহে নিজে গৈও যে মোক অৰুণোদয় আৰু নালাগে বুলি ক'ব পাৰিব বা এসডিসিৰ ওপৰত আবেদনো দিব পাৰিব যে মোক নালাগে যেনেকে ৰেশন কাৰ্ড মানুহে স্বইচ্ছাই ত্যাগ কৰে তক এইবাৰে আমাৰ পুলিচৰ 10000 লৰা চাকৰি পালে তাৰ যদি কোনোবা ফ্যামিলি কেডমান আগতে এতিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰ হা পিছত 32000 চাকৰি দিলো কি জানি হে 32000ৰ 10000ৰ ঘৰত অৰুণোদয় আছিল তেওঁলোকে নিজে এৰিব পাৰিব 20 আগষ্টৰ পৰা স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কলেজৰ স্কুল নহয় কলেজৰ ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰৰ ষ্টুডেন্ট সকল বিশেষকৈ এনএসএস আৰু এনসিসিৰ লগত জড়িত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল পৰিয়ালসমূহৰ ঘৰে ঘৰে যাব এডুকেশন নহয় মানে আমি ধৰি লৈছো যে ষ্টুডেন্টে যি ৰিপৰ্ট দিব শুদ্ধ ৰিপৰ্ট দিব তেনেকে এটা মনত ধৰা হৈছে আজি আপুনি নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে গৃহমন্ত্ৰী সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু যোৱাকালি গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে সাক্ষাৎ গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মৰিয়াত আহিছিল চাহ খাবৰ কাৰণে কোনো পলিটিক্যাল কথা একো নাছিল একেলগে উঠত আছিল গতিকে ইয়াত আহি অসম ভৱনত বলে অসমৰ চাহ একাপ খাম হেতু কাৰণে আহিছিল নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আজি আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি সাক্ষাৎ কৰিছিল আগন্তুক নাগালেণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সিট শেয়াৰিং লৈ গতিকে হেতুৱে সিদ্ধান্ত হল যে যোৱাবাৰ যেনেকুৱা আছিল যে এনডিডিপি দলে 40 আমি 20 সেই সিট শেয়াৰিং তো অহা 5 বছৰৰ কাৰণে আজি আকৌ ৰিনিউ কৰা হল স্টেটমেন্ট এটা ওলাইছে মোৰ টুইটতে আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব G20 वाला वो आधार वाला ये ऐसा है कि G20 शिखर सम्मेलन का ओरिजिन मेन वेन्यू तो दिल्ली में होगा
लेकिन कोई सारे G20 का सभा या कॉन्क्लेव ये देश का कोई सारे हिस्से में होगा। मेरा जितना जानकारी है 45 मीटिंग्स होगा देश का अलग अलग शहरों में। तो हम लोग का असम सरकार से हमने निवेदन किया है कि एक अच्छा वेन्यू का रूप में गुवाहाटी को सिलेक्ट किया जाए और गुवाहाटी में भी ये शिखर सम्मेलन का कोई भी काम, कोई भी मीटिंग दिया जाए। तो इस सिलसिला में जयशंकर जी को हमने अनुरोध किया। अभी वो लोग तो एसेस करेगा, लेकिन असम सरकार का रिक्वेस्ट हमने टेबल पर रख दिया। যোৱাকালি অসমৰ গৌৰৱ লাভলীনা বৰগোহাঁই এটা টুইট কৰি কৈছে যে তেখেতৰ যি যাৱতীয় প্ৰশিক্ষক তেখেত পোৱা নাই। আমাৰ আপোনালোকে জানে যে আমাৰ বক্সিং এছ'চিয়েশ্যনৰ অল ইণ্ডিয়া জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অসমৰে ল'ৰা হেমন্ত কলিতা। ঘটনাটো শুনাৰ লগে লগে মই আমাৰ অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিছো আৰু তেওঁ কৈছে যে দাদা যি ভুল বুজাবুজি হৈছে মই ঠিক কৰি দিম, আই উইল ডু দ্য নিডফুল। গতিকে যেহেতু অসমৰে ল'ৰা আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মানে অসমৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী নহয়, গোটেই ভাৰতৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীজন অসমৰে। সেইকাৰণে মই তেখেতক লগে লগে অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ থ্ৰু দি তেওঁক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যাতে লাভলীনাই সম্পূर्ण ফেচিলিটি পাব পাৰে। आधार वाला यही है कि असम का सारा बेनिफिशियरी, खास करके हमारा जो अरुणोदय बेनिफिट हम लोगों को देता हूं, हम सारा बेनिफिशियरी को आधार लिंक करने का काम असम में जोर तोड़ से चल रहा है। तो 96% लोगों को आधार दिया गया है, लेकिन उसमें हमारा असम में 26 लाख ऐसा परिवार है जो एनआरसी में नाम नहीं होना, ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होने का कारण उनका एनआरसी ब्लॉक है। तो वो भी एक कोई सिद्धांत एक लेना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हमारा आधार 9 था। ये साल हमने इसको कंप्लीट किया। दो छोटा सवाल, एक तो आपने आजादी का अमृत महोत्सव को विषय में जो आपने बताया असम के हर घर में झंडा होना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन इसको पॉलिटिसाइज कर रहा है, वो कर रहा है कि ये बिजनेस के देखिए पूरा जो भी ऐसा बात बोलेगा इसको एक बहुत बड़ा मैसेज जाना चाहिए कि जो व्यक्ति बोलेगा कि तिरंगा हाउस नहीं होना चाहिए, क्या उनको अपने आप को ये देश माता का सम्मान में मेंबर हो, मैं देश माता का संतान हो, ये बोलने का कोई अधिकार रह जाता है? हर घर में एक तिरंगा तो होना ही चाहिए, उसको खरीदना क्यों जरूरत है? घर में आप बना भी ले सकता है, क्यों खरीदना है? उनका कहना है कि सिटीजनशिप के लिए एक तिरंगा नहीं जरूर नहीं सही है, लेकिन मैं देश मातृ का संतान हूं, मैं देश का नागरिक हूं। तो जब एक देश में आप राइट्स को एंजॉय करने का आपका मन होता है, साथ में अपना ड्यूटीज को भी आपको याद होना चाहिए। एक आपको प्रिविलेज चाहिए, देश का नागरिक का सब अधिकार चाहिए, लेकिन आप देश के लिए जो आपका दायित्व है वो निर्वाहन नहीं करेगा, वो ठीक नहीं है, मॉरली ठीक नहीं है, लीगली तो सब कुछ ठीक है। तो इसीलिए कोई तिरंगा खरीदना पड़ेगा ये तो मैं प्रिज्यूम ही नहीं करता हूं। मेरा तो मन में ये है कि हर घर में ऑलरेडी तिरंगा है, होना भी चाहिए हर घर में तिरंगा। तो बिजनेस कैसे होगा? कोई नया खरीदेगा तभी तो बिजनेस होगा। तो हम लोग का घर में तो बचपन से ही तिरंगा है। वो कह रहे हैं कि आप देशभक्ति थोप रहे हैं। मैं नहीं थोप रहा हूं, आप खुद लहराओ ना। मैं थोड़े आपका घर में जाके आपको ठोकूंगा कि आप लहराइए। लेकिन मैं तो ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आप तो हर 15 अगस्त में उठाता है। ये तो क्वेश्चन आ गया कि आप मतलब आपका घर में क्या तिरंगा नहीं है? आप अभी तक नहीं उठाया था क्या? नहीं लहराया था क्या? तो 15 अगस्त का दिन में हर लोग वो करता ही है, लेकिन इस टाइम हमने यही बोला कि अमृत महोत्सव है तो 3 दिन का कीजिए। तो एक दिन तो हम लोग सब करता हूं एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो एक दिन का जगह में प्रधानमंत्री जी बोला है कि 3 दिन तक लहराए। इसमें बिजनेस क्या है? इसमें देशभक्ति थोपने का क्या बात है?
अब तो 15 अगस्त 26 जनवरी आप तो लहराता है घर में। कम से कम एमएलए, मिनिस्टर, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, टीचर, स्टूडेंट, कॉलेज, ये तो बोलने का क्या बात है। खाली इस टाइम एक ही स्पेशल है, पहले आप एक दिन लहराया था, अभी 3 दिन लहराइए, इसमें कौन सा बिजनेस है। আচলতে বেয়া পায় নেকি পতাকা তিৰংগা উত্তোলন কৰিব বেয়া পায় নেকি? ये कुछ नहीं, आप लोग पूछता है तो इसलिए बोलता है, सब उठा ले। Same sir, there have also been demand for population control bill, and in fact some of the MPs have raised it in the parliament. How would you like to react? अब देखिए, ये सब बात कोई पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठता है और मैं उसका यहाँ बैठ के जवाब दूं, वो ठीक नहीं है। अगर कोई बात पार्लियामेंट में उठा है, उसका चर्चा पार्लियामेंट में ही होगा। लेकिन असम हैज ऑलरेडी अडॉप्टेड आवर ओन पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्ग बैक एंड वी आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग, तो इसीलिए हमारा बात अलग है, हम तो ये सब कर ही चुका हूँ। But do you think that model should be implemented across? कोई असम का मॉडल इम्प्लीमेंट करता है तो मैं खुशी होऊंगा, उसमें क्या है। लेकिन पहले तो आपको असम का मॉडल क्या है आपको तो जानना चाहिए। पहले तो आप लिखिए, न्यूज यूज कीजिए। স্যার, জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগটো আকৌ ওলাইছে আৰু জনজাতিকৰণৰ ইস্যুত বিভিন্ন দলপন্থাই মই ভাবো যে এই সব কথা ইয়াতে মই ইয়াত বহি বহি উত্তৰ দিম, এটা শব্দত উত্তৰ দিম, আপোনালোকে দুটা শব্দ লিখিব, তাকে লৈ তাতে গণ্ডগোল আৰম্ভ হৈ যায়। 3 দিন আৰু ধৰ্ণা গণ্ডগোল আৰম্ভ হৈ যায়। গতিকে তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া মই ডাইৰেক্ট কথা পাতিব পাৰো, প্ৰেছৰ জৰিয়তে মই কিয় কথা পাতো। যিসকলে জনজাতীয় দাবী কৰে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ গোটেইকেইটা সংগঠনৰ লগত মই টাচত থাকো, কথা বতৰা আমি পাতি থাকো। আপোনালোকৰ জৰিয়তে দিলে মই যদি কওঁ এইটো সময় লাগিব, আপোনালোকে লিখি দিব যে ডিনাই কৰি দিলে, না বুলি কৈ দিলে। গতিকে মই বুজিছো যে কিছুমান কথা প্ৰেছৰ লগত পাতিব নালাগে। একদম আপোনাতকৈ মোৰ বেছি সদস্য আছে, কিন্তু এইবিলাক কথা প্ৰেছৰ জৰিয়তে পাতিব নালাগে। অসমখন অলপ এটা বেলেগ এটা পৰিৱেশত আছে। 10টা কিছুমান কথা 10 জনক কওঁ, এজনে বেলেগ কৰি নিউজটো লিখে, এজনে বেলেগ কৰি লিখে, এজনে বেলেগ 10টা হেডলাইন হৈ যায়। सर, इंटर स्टेट बाउंड्री इश्यूज को लेकर सर एक क्वेश्चन। हाँ, आज मेघालय के लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुकुल संगमा ने डिमांड किया है कि सर जो एग्रीमेंट साइन किया गया है उसको स्क्रैप करना चाहिए। इन एडिशन टू तो अभी मुझको मैं आपको पूछना पड़ेगा कि मुकुल संगमा का स्टेटमेंट का कॉपी कहाँ है। जब तक मेरा समक्ष मेरा सचिव वो स्टेटमेंट नहीं लाते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं आपको क्यों रिएक्ट करूंगा। आप मान लीजिए मुकुल संगमा कुछ नहीं बोला है, या जो बोला है आप समझ ही नहीं पा रहे, आप उसको क्वेश्चन कर दिया, मैं कुछ अनाप शनाप बोल दूंगा, असम मेघालय का रिलेशन खराब हो जाएगा। तो स्टेटमेंट का मुझको कॉपी दीजिए, इसको नोटिफाई कीजिए कि विल आस्क योर रिएक्शन ऑन दिस स्टेटमेंट, तब मैं रिएक्ट करूंगा। जब तक मेरा सामने स्टेटमेंट नहीं होगा, कम से कम दूसरा स्टेट का बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। This review of CMs that happened on Sunday, do you think that any of these discussions, these 8-hour-long discussions, were looking forward to the 2024 elections? No, it is all about good governance. There are how to make all the scheme, we can take it to the saturation level. Good governance. And one thing we have not discussed, that is politics. No, anything in terms of like schemes that relate to the Northeast specifically? No, it is about all over India. And lastly, second thing I want to ask you is, do you, like, you know, a lot of BJP CMs across the country have echoed the need to have a uniform civil code in their states. Do you think Assam will ever have something? Our views are known. तो मैं हमेशा बोलता हूं कि in all these issues, the BJP's view, BJP's ideology, BJP's thinking it is not that it is opaque. Everybody knows it. So उसमें वो विषय फिर सरसा का क्या जरूरत है। सरसा वो विषय में होता है जहां में हमारा आइडियोलॉजिकल पोजीशन इज नॉट क्लियर। सब जानते हैं हमारा इश्यू क्या है, हमारा डिमांड क्या है, हम क्या चाहते हैं भारत को। सर, सिलचर का ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है उसका आपने प्रस्ताव नहीं भेजा, ऐसे बोला है। देखिए, प्रस्ताव भेजने का पहले जमीन मेरा हाथ में होना पड़ेगा ना। वो तो है अभी।
अभी पूरा नहीं है ना। अभी जब तक मैं डोलू का लोगों को कॉम्पेंसेशन नहीं देता हूं और जब तक मेरा चाय बागान का श्रमिक का साथ एक हार्ट टू हार्ट डिस्कशन नहीं होता है तब तक मैं नहीं भेजूंगा ना। अभी तक आपने भेजा नहीं। इसमें दो इशू है। जो प्रिलिमिनरी भेजा है दे हैव अप्रूव्ड द साइट, बट हम तभी भेज पाऊंगा जब फाइनल प्रपोजल, जब लैंड का मैं मालिक हूं। आपका घर है, आपका घर का ऊपर मैं कैसे प्रपोजल भेजूंगा? सर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है सिलेक्टेड डोलू कि ये जगह मेरे लिए अच्छा होगा, आप ये जगह मुझको दीजिए। अगर आपको वहां में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आप चाहते हैं, मैं बोला मैं आपको दूंगा ये लैंड। इतना तक बात हुआ है, लेकिन देने के लिए वो लैंड का मुझको तो मालिक बनना पड़ेगा ना पहले। सो दीज आर प्रोसेस स्टेप। तो कोई लोग जो स्टेप नंबर 100 है उसको पूछता है कि 100 स्टेप आप ले लिया क्या नंबर 100? फर्स्ट आई हैव टू टेक 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तब जाके 100 पहुंचेगा ना। तो अभी वी आर इन 99, सब कुछ हो गया है। अभी मेरा एक विजिट वहां में पेंडिंग है, बार के लिए नहीं हो पाया। फास्ट मालिक से तो जमीन मुझको मिल गया, 27 एकड़ और मिल गया मुझको, लेकिन दोनों का श्रमिक का भी तो मन क्लियर होना चाहिए ना। सर तो अभी आप जाएंगे सिलचर? मैं अभी जाऊंगा, डोलू में ही जाऊंगा। हमारा 1 लाख रुपया श्रमिकों के लिए मुआवजा रेडी है। फ्लैट के लिए मैं नहीं दे पा रहा था, अभी मैं वहां जाऊंगा, पैसा भी दूंगा, श्रमिकों का साथ बातचीत भी करूंगा, उनको मैं समझाऊंगा यहाँ में फ्लाइट आने से आपका कैसे इकोनॉमी इंप्रूव होगा, एंड फिर हम लोग एप्लीकेशन डाल देगा। सर ये नागालैंड में जो इलेक्शन होना है उसके लिए आप लोगों का शीट शेयरिंग हो चुका है। एनडीडीपी जो पार्टी है वो लोग 40 लड़ेगा, हम लोग 20 लड़ेगा बीजेपी। सर আপুনি কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ পীযুষ গোৱেল আৰু কোল মিনিষ্টাৰৰ সৈতে কথা পাতিছে। কমাৰ্চ মিনিষ্টাৰ লগত কথা পাতা নাই, একচুৱেলি ফুড এণ্ড চিভিল চাপ্লাই মিনিষ্টাৰৰ লগত। তাতে হ'ল কি যে আধাৰ চিডিঙৰ ওপৰত ৰেচন কাৰ্ডৰ কাম চলি আছে। 31 জুলাইলৈকে লাষ্ট ডেট আছে, যে জুলাইৰ পিছত যদি আধাৰ নেদেখুৱাই তেওঁ ৰেচন কাৰ্ড আৰু ৰেচনৰ বস্তু নাপাব। মই কলো আৰু 1 মাহ বঢ়াই দিয়ক, কাৰণ কিছুমান এতিয়াও আধাৰৰ কাম বাকী আছে, বিশেষকৈ নৰ্থ কাছাৰ, কাৰ্বি আংলং জিলাত য'ত ইণ্টাৰনেট শ্ল'। সেইকাৰণে তেওঁক মই ফুড এণ্ড চিভিল চাপ্লাই মিনিষ্টাৰ হিচাপেহে লগ পাইছিলো। কোল মিনিষ্টাৰক এইকাৰণে লগ পাইছিলো যে তেখেতৰ মন্ত্ৰালয়ৰ এটা কৰ্পৰেশ্যন আছে, নেইভেলি লিগনাইট কৰ্পৰেশ্যন। তেওঁলোকৰ লগত অসম চৰকাৰে এটা কোম্পানী গঠন কৰিব আৰু 1000 মেগাৱাট সোলাৰ পাৱাৰ উৎপাদন কৰিব অসমত। গতিকে তেওঁ এটা মোক ডেট দিব লাগে, যিটো ডেটত আমি গুৱাহাটীত এমঅইউখন সহি কৰিম। সেই ডেটটোৰ কাৰণে তেখেতৰ লগত মই কথা পাতিছিলো যে আপুনি আগষ্ট মাহত কেতিয়া আহিব। सर करीमुद्दीन बरभुइया ने एक बयान दिया है और आपके ऊपर आरोप लगाया है कि सिराजुद्दीन अजमल को ईडी परेशान कर रही है, आपको ईडी मास्टर बताया और कहा अमित शाह और आपके इशारे पर ईडी का क्या है? ईडी का मैं पता नहीं क्या ईडी है। स्टेटमेंट है सर करीमुद्दीन भाई, कॉपी दिखाइए, वीडियो देखा वीडियो देखो। Sir, one very small question. As you have already been tagged as crisis solution manager for BJP, following your meeting in Darjeeling with Mamata Banerjee and the candidate, ruling party's candidate for vice president election, there are rumors that you have played the game plan for this. क्या गेम क्या है उसमें? Abstaining the TMC from voting. उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो एब्सटेन करे ना करे तो वाइस प्रेसिडेंट का तो चुनाव तो अलग रास्ता है। ममता बनर्जी को आई मेट एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड आई मेड हर एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ असम to discuss the mutual issues between Assam and Bengal. That was a cordial meeting. इसका कोई political meeting का कोई महत्व नहीं है। आप मिलने के बाद ही वो ये देखिए, मैं कल किसी को मिल लूंगा, उनका लॉटरी लग गया नेक्स्ट डे लॉटरी टिकट के, उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल होगा क्या? तो मैं मिलने का सिवा भी तो दिन भर और बहुत लोगों से सब मिलते रहता है। तो ये देखिए, ये मीडिया को एक लगता है कि ये मुझको इसके लिए दार्जिलिंग जाना है क्या? अगर वो कोई बात करना है तो टेलीफोन में ही कर लेगा। तो मेरा तो स्ट्रिक्टली
जो विजिट था वो विजिट हम चाहते हैं कि असम मेघालय, असम त्रिपुरा, असम बंगाल, तो ये बॉर्डर स्टेट का बीच में रिलेशन अच्छा होना चाहिए फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो आई एम इन ए डिफरेंट मिशन. कोई पहले असम का कोई मुख्यमंत्री, ऐसा बात हुआ था वही बात हुआ. बाकी हम क्यों करेगा, हमारा पॉलिटिकल बात और প্ৰশ্নটো হৈছে যে पॉलिटिकल बात नहीं होता है. वो उस तरीका से पॉलिटिकल बात नहीं होता है. आप कभी देखिए कोई सीनियर जर्नलिस्ट इसका ऊपर नहीं लिखा है. दोज हु हैव सीन पॉलिटिक्स. মধুপুৰ সত্ৰক লৈ আলোচনা হৈছিল নেকি যিহেতু মই বৰ্তমান এটা বেলেগ মিছনত আছো. ডাঙৰ কথা পতা, ডাঙৰ ট্ৰেক কৰা, মানে অসমখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে. তাতে কোনোবাই মোক সোধে অমুক পেচেণ্টৰ বিষয়ে কয়, তেনেকে CM to CM ডিছকাশ্যনত মধুপুৰ সত্ৰ এখন অসমৰ সত্ৰ, অসম চৰকাৰে তাক ভাল কৰিবৰ কাৰণে টকা পইচা দিব লাগে. এই কথাটো মই পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত পাতি কি কৰিম? তেওঁ বোলে কিবা বাধা দি আছে, তেতিয়াহে পাতিম. অসুবিধা আছে তো আমি দূৰ কৰিব লাগিব না. সেইখিনিতো কেপাচিটি ৰিলেশ্যন হয়. আমাৰ বহুত কথা সুবিধা হৈ যায়. এটা নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ পাইপলাইন আহি আছে. ইট ইজ কামিং থ্ৰু বেংগল. So lot of permissions are required. যদি অসম বদলি ভাল ভাব এটা হয়, বেংগলৰ প্ৰত্যেকজন ডিচিয়ে পাৰমিশন দি থাকিব. যদি বেয়া ভাব এটা হয়, all file will be pending. So we are in a mission of creating relationship with our neighboring state. How she respond your She is all right. मेरा सब तो देखिए, she came to our state during for Kamakhya visit. That day I was not there. Today when I went to Darjeeling, she was there. लेकिन वो बीच में धनकर जी था ना, इसीलिए ये सब पोस्टर अरे धनकर जी का घर में हुआ. इट वॉज, ये अच्छा हुआ कि ममता जी ने मुझको उनका घर में बुलाया था. फिर बोला नहीं हेमंत तुम मेरा गेस्ट है, मैं ही आता हूं. तो हर जगह में पॉलिटिक्स डिस्कशन नहीं होता है. ये आप लोग का एक गलत फहमी है कि दो पॉलिटिशियन मिलने से पॉलिटिक्स का बात होता है. वो नहीं होता है वास्तव में. और इतना बड़ा बात अगर करना है ममता जी से, कोई वाइस प्रेसिडेंट का बात, और नाडा जी करेगा, मैं क्यों करूं? या हमारा कोई जनरल सेक्रेटरी होगा जो रेस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल, ही विल डू दैट. मेरा उसमें क्या? You want to take off on this whole entire issue of meeting Mamata Banerjee. Do you see the TMC emerging as a very formidable party? क्यों ऐसा बात मुझको पूछते हो? हमको बोलो असम एंड बंगाल का बारे में आप पूछो. मैं we have gone there to build relations. और मैं तो जाने का पहले भी ट्वीट करके गया, अगर कोई गड़बड़ी मिशन होता है, कोई डिप्लोमेटिक चुपचाप लुक जाएगा, क्यों दार्जिलिंग में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा? कि ये तो ओपन द स्काई मिलने का मतलब क्या है कि कोई हमने कॉन्फिडेंशियल बात हमको डिस्कस करना नहीं था. अदरवाइज चुपचाप कुछ बात करना था तो मैं कलकत्ता ही चला जाता था, अकेला रात 1:30 बजे मिल के आता था. यू नॉट इवन नो इट. तो मीनिंग डियर बाय व्हेन टू पॉलिटिशियन मीट्स इन ओपन स्काई, तब तो आप दोनों को विश्वास करना पड़ेगा कि दैट मीन्स दे आर डिस्कसिंग समथिंग व्हिच इज म्यूचुअल इंटरेस्ट. मैं सुन लूंगा उनका. वो कौन है, कौन व्यक्ति, कौन क्या करते हो पता नहीं. पहले कौन है क्या नहीं है ऐसा तो. आपसे इस तरह का आरोप आसाम में 36 लाख लोग है, तो 36% मतलब 1 करोड़ लोग है जिसका टाइटल उनसे मिला होगा. और शर्मा बोलने से कम 20 लाख लोगों का टाइटल मिला होगा. तो कौन है क्या है पता नहीं. मैं क्यों जवाब दो सब. হ'ব এতিয়া পবিত্ৰ ভাতটো খুৱাব, আপোনালোক সকলোৱে ভাতটো খাই যাব. একচুৱেলি যেতিয়া অসম ভৱনটো ভাঙিব তেতিয়া, কাৰণ তেতিয়া অসম ভৱনৰ গোটেই মানুহখিনি লোডটো ইয়াত আহি যাব. এতিয়া মোক লাগিব, এতিয়াতো নালাগে. এতিয়া চব पवित्र जानी और मत करो यार. मैं ये लोकल लोगों के बुलाए छोड़ दो. Dada, I'm Siddhant from SAME and I've been asking for your time from last 4 days.